Hello guys, today we are going to solve a problem on the balancing of rotating masses. This is fourth problem in this module. So here I will read out the question of the problem. A rotating shaft carries 4 masses 1, 2, 3 and 4. So here they have given a rotating shaft which carries 4 masses 1, 2, 3 and 4. Okay, mass 1, mass 2, mass 3 and mass 4, which are radially attached to it. So here these 4 masses are attached radially to it. Radial means around. Radial means around the shaft. These 4 masses are attached on the shaft. The mass centers are 30 mm, 38 mm, 40 mm and 35 mm respectively. So the mass centers are 30 mm, 38 mm, 40 mm and 35 mm respectively from the axis of rotation. So these are the nothing but the radius of rotation. As I said, the radius of rotation is nothing but the distance between center of the mass and the axis of shaft or axis of the rotation. So here they have given the sentence. The mass centers are 30 mm, 38 mm, 40 mm and 35 mm respectively from the axis of rotation. So here these are the radius of rotation of masses 1, 2, 3 and 4 respectively. It means mass 1 has 30 mm radius of rotation, mass 2 has 38 radius of rotation, 3 has 40 mm radius of rotation, 4 has 35 mm radius of rotation. Okay. Next, the masses 1, 3 and 4 are 7.5, 5 and 4 kg respectively. So here they have given the masses of 3 masses, that is mass 1, mass 3 and mass 4. That is mass 1 has 7.5 kg, mass 3 has 5 kg, mass 4 has 4 kg. And here they have not given the mass of this 2. Mass 2 they have not given. Okay. The axial distance between the planes 1 and 2 is 400 mm and 2 and 3 is 500 mm. So here यहाँ पे प्लेन्स करके मेंशन किया हुआ है. यहाँ पे सेंटेंस में प्लेन्स, यहाँ पे डिस्टेंस, प्लेन्स का डिस्टेंस दिया हुआ है. ठीक है, इसका मतलब ये चारों मासेस जो है नहीं अलग अलग प्लेन्स में कनेक्टेड हैं, अलग अलग प्लेन्स में अटैच्ड हैं. ओके, तो यहाँ पे प्लेन्स का डिस्टेंस दिया है. 1 एंड 2 के बीच में डिस्टेंस है 400 mm एंड 2 एंड 3 प्लेन के बीच में डिस्टेंस है 500 mm. तो यहाँ पे प्लेन्स कैसे दिए हैं बोले तो मास 1 जो है प्लेन 1 में अटैच्ड है, मास 2 जो है प्लेन 2 में अटैच्ड है, मास 3 जो है प्लेन 3 में अटैच्ड है, मास 4 जो है प्लेन 4 में अटैच्ड है. ओके, सो यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स 1 एंड 2 मतलब दो 1 एंड 2 के प्लेन के बीच में डिस्टेंस 400 mm है और प्लेन 2 और 3 के बीच में 500 mm डिस्टेंस है. ओके, नेक्स्ट द masses 1 and 3 are at right angles to each other. So here they have given the angle between 1 and 3, that is 90 degree. So here they have mentioned right angles to each other. तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में जो एंगल है 90 डिग्रीज रहेगा. नेक्स्ट, फाइंड फॉर कंप्लीट बैलेंस एंगल बिटवीन 1, 2 and 1, 4. So here you have to find out the angle between mass 1 and mass 2. Next, mass 1 and mass 4. Okay. Next, we have to calculate axial distance between 3 and 4. तो axial distance बोले तो प्लेन का डिस्टेंस, axial बोले तो along the axis. So axial distance बोले तो the distance between mass 3 and mass 4, that is the distance between plane 3 and plane 4. आप प्लेन 3 और प्लेन 4 का डिस्टेंस फाइंड किए तो वही जो है मास 3 और मास 4 के बीच में का डिस्टेंस रहेगा. मैग्नीट्यूड ऑफ मास 2. सो हियर यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मास 2. मीन्स here you have to calculate the value of mass 2. In the question they are not given the value of mass 2. So first of all we shall draw the space diagram. Here we should draw the space diagram. Okay, so here first we shall draw the space diagram. So here they have given the angle between 1 and 3, that is 90 degrees.
Okay, so here they have mentioned that the masses 1 and 3 are attached at right angles to each other. So right angles to each other means the angle between 1 and 3 will be 90 degrees. So here mass 1 I will take it as reference. मास 1 को मैं रेफरेंस करके लेता हूँ, ठीक है, और मास 1 से जो है 90 डिग्री पे मास 3 निकालता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं मास 1 निकालता हूँ, मास 1 को मैं रेफरेंस मास करके लेता हूँ, तो इसका मतलब मास 1 को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ। तो हियर आई एम ड्राइंग द मास 1। ओके, मतलब इसका मास 1 रेफरेंस ले रहे हैं बोले तो इसका एंगल 0 करके कंसिडर किए रहते हैं, तो आप सिर्फ 1 करके भी लिख सकते हैं। हम 1 करके लिख दो, ठीक है, मास 1। ओके, इसको मैं रेफरेंस करके लिया हूँ, तो इसको मैं 0 डिग्री पे लिया हूँ। 0 डिग्री पे मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 1 एंड 3 के बीच में एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। 90 डिग्री बोले तो यहाँ से इस मास 1 से आपको 90 डिग्री मेज़र करना पड़ेगा, परफेक्ट 90 डिग्रीज। ये जो है मास 3 है। ओके, तो यहाँ पे दोनों के बीच में 90 डिग्री, और दूसरे मासेस का एंगल्स दिया नहीं है, ठीक है, और दूसरे मासेस का एंगल्स हमको फाइंड करना है, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दी फर्दर प्रॉब्लम। ओके, तो ये हो गया आपका स्पेस डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही मास का आपको एंगल दिया हुआ है, दूसरे मासेस का एंगल्स नहीं दिया, तो सिर्फ स्पेस डायग्राम इतना ही रहेगा। तो नेक्स्ट अभी क्या है, प्लेन्स का डायग्राम बनाना है, प्लेन्स का डायग्राम। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी प्लेन्स का डायग्राम बना चुका हूँ, ठीक है। सो ये रहेंगे प्लेन्स का डायग्राम। यहाँ पे देखो पहले आपको 4 मासेस निकालना है, 1 2 3 4, ओके, क्योंकि चारों मासेस जो है अलग अलग प्लेन्स में रहेंगे। ओके, चारों मासेस जो है अलग अलग प्लेन्स में है, तो आपको मासेस अलग अलग निकालना है, m1 m2 m3 और m4। ये जो है मासेस के प्लेन्स हैं। ये मास 1 का प्लेन है, मास 2 का प्लेन ये है, मास 3 का प्लेन ये है, मास 4 का प्लेन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस दिया हुआ है, प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है। द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स 1 एंड 2 इज़ 400 mm। प्लेन 1 एंड 2 के बीच में 400 डिस्टेंस दिया हुआ है, तो वही यहाँ पे निकाला हूँ 400 mm। नेक्स्ट जो है 2 एंड 3 के बीच में 500 mm दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो 4 एंड 5 के बीच में 500 डिस्टेंस दिया हुआ है, तो वही यहाँ पे 2 एंड 3 के बीच में, यहाँ पे 2 एंड 3 के बीच में 500 mm दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 एंड 3 के बीच में भी 500 mm डिस्टेंस निकाला हुआ मैं। ओके, सो ये हो गया आपका प्लेन्स का डायग्राम। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द टैबुलर कॉलम। अब यहाँ पे हम टैबुलर कॉलम बनाना है, जिसमें गिवन डेटा भी मैं उसी में लिख देता हूँ, ठीक है। टैबुलर कॉलम में ही मैं गिवन डेटा लिख देता हूँ। सो हियर दिस इज़ द टैबुलर कॉलम। इन द फर्स्ट कॉलम हियर, सो फर्स्ट कॉलम में आपको प्लेन करके ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्लेन के बदले में सीरियल नंबर भी ले सकते हैं। सेकेंड कॉलम में मास, थर्ड कॉलम में रेडियस ऑफ रोटेशन, फोर्थ कॉलम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, फिफ्थ कॉलम में डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन टू। तो यहाँ पे डिस्टेंस, एक प्लेन को रेफरेंस बनाना है और उस प्लेन से सभी का डिस्टेंस मेज़र करना है। तो यहाँ पे मैं सेकेंड प्लेन करके रेफरेंस प्लेन करके लिया हूँ। आप कौन सा भी प्लेन रेफरेंस करके ले सकते हैं। I am telling you once again here, you can take any plane as a reference plane. So here I have taken plane 2 as reference plane. So usually मैं जो है लेफ्ट मोस्ट साइड और मतलब सेकेंड लास्ट बट हियर फर्स्ट बट सेकेंड को प्लेन को रेफ़र करता हूँ। यूजुअली मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे सेकेंड बट फर्स्ट, ये सेकेंड प्लेन को मैं रेफरेंस करके लेता हूँ सभी प्रॉब्लम में। यूजुअली मैं सभी प्रॉब्लम्स में इस सेकेंड प्लेन को मैं रेफरेंस प्लेन करके कंसिडर करता हूँ। आप यहाँ पे कौन सा भी प्लेन रेफरेंस प्लेन करके कंसिडर कर सकते हैं। कौन सा भी प्लेन रेफरेंस प्लेन करके कंसिडर करके
आप जो है ना उस प्लेन से बाकी प्लेन्स का डिस्टेंस को लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी इस प्रॉब्लम में सेकेंड प्लेन को मैं रेफरेंस प्लेन करके कंसिडर किया हूँ। ठीक है, यूजुअली मैं सेकेंड प्लेन को ही रेफरेंस प्लेन करके कंसिडर करता हूँ मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में। ओके, सो यहाँ पे देखो मासेस लिखा हूँ। M1 जो है 7.5 kg है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट M2 का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, इसको फाइंड करना है। M3 का वैल्यू है 5 kg, ये भी क्वेश्चन में दिया है। और M4 का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है 4 kg करके दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट रेडियस ऑफ रोटेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 mm, 38 mm, 40 mm, 35 mm। ओके, ये जो है रेडियस ऑफ रोटेशन मास 1, मास 2, मास 3 एंड मास 4 के हैं। तो यहाँ पे मास 1 का रेडियस ऑफ रोटेशन R1 करके लिया हूँ 30 mm एंड इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 0.3 मीटर होगा। सिमिलरली R2 38 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट किए तो 0.038 मीटर हो जाएगा। और M3 का रेडियस ऑफ रोटेशन 40 mm है, इसको R3 करके लिया हूँ, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.04 मीटर होगा। नेक्स्ट M4 का रेडियस ऑफ रोटेशन R4 करके लिया हूँ, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 35 mm है और इसको मैं मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.035 मीटर होगा। ठीक है, अभी देखो फोर्स लिखना है। फोर्स इज नथिंग बट जस्ट दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू, M इंटू R करना है आपको बस। ओके, M1 इंटू R1, सो यू विल गेट 0.225। okay, so next one is M2 into R2, you will get the value as, यहाँ पे देखो M2 into R2 का वैल्यू हमको मालूम है 0.038। ओके, M2 का वैल्यू एज इट इज़ लिख दो M2, क्योंकि M2 का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। ओके, नेक्स्ट 5 into 0.04, so you will get 0.2। ओके, नेक्स्ट 4 into this value, you will get 4 into 0.035, you will get 0.14 Newton. So these values will be in Newton. Okay, next distance from the reference plane 2। अभी जो है हर एक प्लेन का जो है प्लेन 2 से कितना डिस्टेंस है यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखो प्लेन 1, यहाँ पे प्लेन 1 क्यों लिखा, यहाँ पे प्लेन्स क्यों लिखा बोले तो यहाँ पे थोड़ा आपको आसानी होगी। सीरियल नंबर के बदले में प्लेन यहाँ पे आप लिखे तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस लिखने में थोड़ा आसानी होगी। यहाँ पे देखो प्लेन 1 का डिस्टेंस लिख रहे हैं, प्लेन 2 से। यहाँ पे आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। प्लेन 1 ये है, प्लेन 2 ये है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 400 mm है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना, मीटर में कन्वर्ट करना है। 400 mm इज इक्वल टू 0.4 मीटर। सो हियर बिफोर दैट ये 400 mm डिस्टेंस है प्लेन 1 और 2 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे प्लेन 2 हम रेफरेंस करके लिए हैं। अभी आप प्लेन 1 का डिस्टेंस लिख रहे हैं, प्लेन 1 का यहाँ पे डिस्टेंस लिख रहे हैं। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है 400 mm है, यहाँ पे 400 लिखा हूँ, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करता हूँ मैं। ओके, प्लेन 1 के लिए नेगेटिव साइन यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये प्लेन 1 जो है नहीं प्लेन 2 के लेफ्ट हैंड साइड है। प्लेन 1 जो है नहीं प्लेन 2 के लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसलिए आपको माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, और प्लेन 2 के राइट साइड में जो भी प्लेन्स है उसके वैल्यूज जो है पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैं -400 करके लिखा हूँ, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, -0.4 मीटर होगा। ओके, नेक्स्ट प्लेन 2 का डिस्टेंस प्लेन 2 से, तो प्लेन 2 का डिस्टेंस प्लेन 2 से 0 ही रहेगा। ठीक है, मतलब प्लेन 2 का डिस्टेंस प्लेन 2 से कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 0। नेक्स्ट प्लेन 3 का डिस्टेंस प्लेन 2 से, प्लेन 2 से जो है 500 mm है। प्लेन 3 का डिस्टेंस प्लेन 2 से 500 mm है, तो वही यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे देखो प्लेन 3 जो है प्लेन 2 से राइट साइड में है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव में लेता हूँ। सो पॉजिटिव मतलब 500 mm, आप प्लस नहीं लिखे तो भी इट इज़ अंडरस्टूड रहेगा। सो 0.5 मीटर होगा। नेक्स्ट M4 प्लेन 4 का डिस्टेंस प्लेन 2 से, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। प्लेन 2 का डिस्टेंस प्लेन
प्लेन 4 का डिस्टेंस प्लेन 2 से यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो इसको भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस डिस्टेंस को x करके लेता हूँ। ओके, आपको प्लेन 4 का डिस्टेंस जो है प्लेन 2 से डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, प्लेन 4 का डिस्टेंस प्लेन 2 से नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे x करके लेता हूँ। तो ये वैल्यू अभी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं x करके लेता हूँ, ठीक है, x। ओके, यहाँ पे मैं x, यहाँ पे भी ये डायग्राम में भी x करके दिखाया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है कपल लिखने का बहुत ईजी है। दिस इंटू दिस, मतलब दिस इंटू दिस वैल्यू यू हैव टू मल्टीप्लाई इट एंड राइट द आंसर। कपल बोले तो फोर्स इंटू डिस्टेंस। ओके, तो फोर्स m1 का कपल जो है दिस इंटू दिस, मतलब 0.225 इंटू -0.4 मीटर। तो इट विल, यहाँ पे कितना होता है देखो, 0.225 इंटू -0.4, so you will get -0.09. Similarly, this into this, it will be 0. Next this into this, okay, so it will be 0.1. Next this into this, it will be 0.14x. ओके, ये होगा टैबुलर कॉलम। अभी देखो यहाँ पे अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए आपको फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम और कपल पॉलीगॉन डायग्राम निकालना है। तो यहाँ पे पहले फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालेंगे या कपल पॉलीगॉन डायग्राम निकालना है, उसके लिए आपको फोर्स के वैल्यूज़ और कपल के वैल्यूज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फोर्स के वैल्यूज़ में जो है यहाँ पे m2 अननोन है और कपल के वैल्यूज़ में x अननोन है, ठीक है। तो यूजुअली पहले हम कपल पॉलीगॉन डायग्राम निकालना है, तो पहले हमको कपल पॉलीगॉन डायग्राम निकालना है, ठीक है। तो कपल पॉलीगॉन डायग्राम निकालेंगे तो आप आसानी से m2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम से, ठीक है। सो कपल पॉलीगॉन डायग्राम, ओके। कपल पॉलीगॉन डायग्राम के लिए आपको ये वैल्यूज़ यूज़ करना है। तो बेस्ड ऑन दिस वैल्यूज़ यू हैव टू सेट द स्केल। आपको अभी यहाँ पे स्केल सेट करना है, ये वैल्यूज़ देख के आपको स्केल सेट करना है। तो यहाँ पे देखो सभी 0.0 समथिंग ऐसा है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 0.1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लेता हूँ। ओके, ये सभी वैल्यूज़ देख के जो है नहीं, मैं यहाँ पे क्या सेट कर रहा हूँ स्केल 0.1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले आप यहाँ पे सीक्वेंस में आना है ऊपर से नीचे तक। तो पहला वैल्यू जो है -0.09 न्यूटन मीटर है, तो इसको पहले स्केल में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे देखो स्केल जो है 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या चाहिए, -0.09 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स। तो इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के साथ जो है उसको न्यूमरेटर में लिखो। ओके, क्वेश्चन मार्क के साथ ये 0.1 नीचे है तो उसको डिनोमिनेटर में लिखो। सो नेक्स्ट ये जो नंबर्स कनेक्टेड हैं इसको ऊपर लिखो 0.09 इंटू 5। सो यू विल गेट कितना मिलेगा 0.09 इंटू 5 यू विल गेट -0.45 सेंटीमीटर्स। सो इतना लाइन आपको कपल पॉलीगॉन डायग्राम में जो है m1 का जो कपल है इतने सेंटीमीटर का लाइन बनेगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा आपको। एक्चुअली -0.45 सेंटीमीटर नहीं होगा, एक्चुअली -4.5 सेंटीमीटर होगा। आप ये कैलकुलेट किए तो थोड़ा यहाँ पे करेक्शन कर लो। यहाँ पे हम क्या किए थे 0.045 सेंटीमीटर किए थे, वो रॉन्ग है। तो इतना कैलकुलेट किया तो क्या आएगा -4.5 सेंटीमीटर होगा। तो m1 का आपको कपल पॉलीगॉन डायग्राम जो है -4.5 सेंटीमीटर का लाइन बनाना है। ओके, वो लाइन जो है ये m1 का पैरेलल रहना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में रहना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों रहना चाहिए, यहाँ पे माइनस साइन है,
यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसलिए जो आप कपल पॉलीगॉन डायग्राम निकालते हैं ना, तो इस लाइन के अपोजिट में रहेगा। यहाँ पे देखो लाइन आप लेफ़्ट टू राइट निकाले, लेफ़्ट टू O2 M1 निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है 4.5 सेंटीमीटर का लाइन जो है इसका पैरेलल बनाना है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाना है। तो लेफ़्ट टू राइट, यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट बनाए, तो यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट बनाना है। आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे तो आप यहाँ पे ये हॉरिजॉन्ट, यहाँ पे देखो ये होगा 0.09 सेंटीमीटर, 0.09 न्यूटन मीटर का लाइन। ये होगा, मैं नेगेटिव डायरेक्शन निकाला हूँ, मतलब इस तरफ निकाला हूँ, ठीक है। तो डायरेक्शन इस निकाल, क्योंकि माइनस है तो इसलिए आपको ये लाइन के अपोजिट में निकालना है। ये लाइन के अपोजिट में बोले तो ऐसे 0 to A ऐसे निकालना, और ये लाइन जो है इसको पैरेलल रहेगा, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों पैरेलल रहेंगे। सो नेक्स्ट कपल जो है 0 है, तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट है 0.1 न्यूटन मीटर। सो 0.1 न्यूटन मीटर बोले तो हम ऑलरेडी स्केल सेट किए हैं, 0.1 न्यूटन मीटर बोले तो 5 सेंटीमीटर। तो अभी क्या है, मास 3 का जो कपल जो है 5 सेंटीमीटर का लाइन बनेगा, और वो 5 सेंटीमीटर लाइन जो है M3 यहाँ पे स्पेस डायग्राम में M3 इसका पैरेलल बनेगा, इसका M3 का पैरेलल बनेगा। तो यहाँ पे देखो M3 मास जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 डिग्रीज बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी यहाँ पे राइट साइड में है, राइट साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है। यहाँ पे देखो ये M3 जो है राइट साइड में ही राइट साइड हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्रीज बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी है, तो 90 डिग्रीज यहाँ पे मार्क करो, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस लेके। परफेक्ट 90 डिग्रीज मेज़र करो, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री आप मार्क किए। नेक्स्ट जो है 5 सेंटीमीटर लाइन निकालना है, क्योंकि हम स्केल्स क्या सेट किए, 0.1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 0.1 है, तो 0.1 बोले तो 5 सेंटीमीटर का लाइन निकालना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री मार्क किया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर लाइन निकालो। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ तक ही होगा, ठीक है। तो ये होगा पॉइंट बी, ये होगा पॉइंट बी। सो अभी जो नेक्स्ट वैल्यू है ये वैल्यू है, बट यहाँ पे ये वैल्यू जो है अननोन वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू मालूम नहीं है हमको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे और कुछ वैल्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे कपल पॉलीगॉन डायग्राम ख़त्म हुआ है, मतलब यहाँ पे इसको क्लोज करना है। अभी क्लोज मतलब एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करना है डॉटेड लाइन से। ओके, अननोन वैल्यू यहाँ पे देखो एंड पॉइंट को और स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइन किया, तो ये लाइन जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा। जो अननोन ये कॉलम में जो ये इस कॉलम में जो है ये अननोन है, ठीक है। इस कॉलम में कपल के कॉलम में ये अननोन है, तो ये डॉटेड लाइन जो है वो अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा 0.14x। और ये जो A to B लाइन जो है आप 0.1 का निकाले, तो यहाँ पे 0.1 करके लिखता हूँ मैं, 0.1 करके लिखता हूँ। ये वैल्यूज़ आप नहीं लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइन जो है 0.146 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी जो है आप x का वैल्यू फाइंड करना है। अभी x का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो वेरी सिंपल, यहाँ पे देखो ये लाइन OB लाइन जो है, अब डायरेक्शन जो है OB डायरेक्शन ऐसे रहेगा। OB का ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे मैं मेज़र करता हूँ, ये जो डिस्टेंस है 6.8 सेंटीमीटर है। ओके, तो अभी जो है ये अभी x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये लाइन जो है OB इसके इक्वल रहेगा, इसको इक्वल रहेगा। तो 0.14x इज इक्वल टू OB। ओके, यहाँ पे स्केल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको स्केल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप स्केल में कन्वर्ट किए रहते हैं स्टार्टिंग में। इस डायग्राम, ये कपल पॉलीगॉन डायग्राम बनाने के लिए आप यहाँ पे स्केल में कन्वर्ट किए रहते हैं। अब वापस ओरिजिनल वैल्यूज़ में जाने के लिए अगेन यहाँ पे स्केल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.14x
वो भी इज़ 6.8, यहाँ पे 6.8 इंटू स्केल। स्केल देखो यहाँ पे 0.1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिया। अब ये 5 सेंटीमीटर को राइट साइड में लो, राइट साइड में लिए तो राइट साइड में लेंगे तो 0.1 डिवाइड बाय 5 होगा। ये 5 इधर ले तो 0.1 डिवाइड बाय 5 बनेगा। तो यहाँ पे 0.1 डिवाइड बाय 5 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 0.15 यहाँ पे लिखना है। तो 0.146 इज इक्वल टू 6.8 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 5, तो आपको मिलेगा 0.136। सो x का वैल्यू इज इक्वल टू 0.136 डिवाइड बाय 0.14। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 0.97 सेंटीमीटर। सो दिस इज दिस विल बी इन मीटर। यहाँ पे देखो सभी वैल्यूज़ मीटर में लिए, यहाँ पे देखो कॉलम में सभी वैल्यूज़ मीटर में लिए, तो ये वैल्यू भी आपको मीटर में ही रहेगा। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी स्केल कन्वर्ट किए हैं, तो यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं रहेगा, मीटर ही रहेगा, मीटर ही रहेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो मास 4 का एंगल नहीं दिया हुआ है, मास 4 का एंगल नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस डायग्राम में भी आप मास 4 का एंगल नहीं दिखा है। तो ये लाइन जो है 0.146 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वैल्यू जो है m4 का है, ये वैल्यू जो है m4 का है। मतलब ये लाइन से हम m4 का एंगल फाइंड कर सकते हैं, ये लाइन से हम m4 का एंगल फाइंड कर सकते हैं। एक वैसे बोले तो एंगुलर पोजीशन ऑफ m4 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सभी एंगल्स आप नेगेटिव में मेज़र किए हैं, ठीक है। तो ये लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन जो है बी से निकाले आप, ये डॉटेड लाइन जो है बी से निकाले। तो यहाँ पे एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो रेफरेंस के लिए, क्योंकि एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज में मेज़र करना है, ठीक है। तो ये रेफरेंस के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला हूँ मैं, उसको एंगल को है एंटी क्लॉकवाइज में मेज़र करना है। तो यहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज में, तो ऐसे यहाँ से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, सो यहाँ से यहाँ 180 हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 180 प्लस 180 प्लस 130 134 133 180 प्लस 133 180 प्लस 133, so 313 degrees. The angular position of M4 will be 313 degrees. बुक में जो वैल्यू है 314 डिग्रीज है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे बुक में जो है x का वैल्यू 0.96 मीटर है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। तो ये जो एंगल है 313 डिग्रीज M4 का रहेगा, M4 का रहेगा। तो वो ये M4 जो है अभी स्पेस डायग्राम में आप निकाल सकते हैं। 313 डिग्रीज मेज़र करके आप यहाँ पे एंगल निकाल मास 4 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो M1 से मेज़र करना, क्योंकि M1 हम रेफरेंस मास करके लिए हैं। M1 से मेज़र करो, तो यहाँ से यहाँ तक 180 होगा। तो नेक्स्ट 133 प्लस 180 प्लस 133, तो यहाँ पे आएगा मास से, तो इस मास को निकाल दो। ये जो है M4, (313 डिग्रीज), ओके। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओके। नेक्स्ट ये हो गया, आप M4 का एंगल फाइंड किए, ठीक है। नेक्स्ट जो है अभी फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में हम क्या क्या फाइंड किए अभी, द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड क्या क्या फाइंड करना है। यहाँ पे देखो पहले एंगल बिटवीन 1 2 एंड 1 4, 1 4 का यहाँ पे फाइंड किए, एंगल बिटवीन 1 4 यहाँ पे फाइंड किया अभी जस्ट। एंगल बिटवीन 1 एंड 4, एंगल बिटवीन 1 एंड 4 विल बी 313 डिग्रीज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ
313 डिग्रीज बोले तो दिस इज एंगल बिटवीन 194, दैट इज 313 डिग्रीज. द डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 4 फाइंड करने के लिए बोले हो. द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 4 फाइंड करने के लिए बोले. एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 4. ओके, तो वो भी यहाँ पे आप यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड किए. ये x वैल्यू का वैल्यू लेके द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 4 भी फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू जो है 2 से 4 तक है. x जो है डिस्टेंस जो है 2 से 4 है, दैट इज x है. ओके, सो x है और 2 to 3 कितना है 500 mm है, मतलब 0.5 मीटर. ओके, सो 2 to 3 इज 0.5 मीटर और 2 to 4 इज 0.97 मीटर है. ठीक है, सो दिस माइनस दिस के तो आपको डिस्टेंस 3 एंड 4 के बीच का मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0.97 माइनस 0.5, ये 0.5 जो है ये डिस्टेंस है. द डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3 500 mm है. यहाँ पे मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करके 0.5 करके लिखा हूँ. ठीक है, तो आपको मिलेगा 0.97 माइनस 0.5 इज नथिंग बट 0.47 मीटर. द डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 4 विल बी 0.4 सेंटीमीटर. सो अभी बचा क्या, अभी आपको क्या फाइंड करना है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मास मतलब मास 2 का फाइंड करना है. मास 2 का मास आपको फाइंड करना है. ठीक है, ये होगा सेकेंड टास्क, एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 4. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ मास 2 फाइंड करना है. तो इसके लिए आपको फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालना है. ठीक है, फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालने के लिए आपको फोर्सेस के वैल्यूज को यूज़ करना है. यहाँ पे देखो ये कॉलम आपको यूज़ करना है. 0.0225 न्यूटन, 0.038 m2 इसको छोड़ दो, अननोन है. 0.2 मीटर है, 0.14 मीटर है, सॉरी न्यूटन है, 0.14 न्यूटन है. तो ये वैल्यूज़ के हिसाब से आपको स्केल सेट करना पड़ेगा. ठीक है, सो ये वैल्यूज़ के हिसाब से मैं स्केल सेट करूँगा. यहाँ पे 0.225 है, 0.2 है, 0.14 है, ये वैल्यू छोड़ दो, अननोन है. तो यहाँ पे मैं स्केल क्या सेट करूँगा, 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लेता हूँ. 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लेता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे देखो फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालने के लिए आपको ये वैल्यूज यूज़ करना है. तो पहले मैं m1 का फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालता हूँ. उसका वैल्यू है 0.225 मीटर. तो इसको पहले आप स्केल में कन्वर्ट करो. ठीक है, यहाँ पे देखो 0.225 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स. ठीक है, यहाँ पे 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, बट हमको क्या चाहिए 0.225 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स. तो यहाँ पे यारो मार्क्स डालो ऐसे. ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ जो कनेक्टेड है उसको डिनोमिनेटर में लिखो, दैट इज 0.2. ये जो नंबर्स कनेक्टेड है उसको न्यूमरेटर में लिखो, 0.225 इंटू 5. सो यू विल गेट 0.225 इंटू 5 whole divided by 0.2. So you will get 5.6 अप्रॉक्सीमेटली 5.62 सेंटीमीटर है. तो अप्रॉक्सीमेटली 5.2 सेंटीमीटर. तो आपको 5.2 सेंटीमीटर निकालना पड़ेगा m1 का. तो m1 का जो है फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम जो है आपको 5.2 सेंटीमीटर लाइन निकालना है. यहाँ पे देखो वो जो लाइन है m1 का पैरेलल निकालना है. यहाँ पे देखो m1 यहाँ पे है स्पेस डायग्राम में, तो इसका पैरेलल निकालना है. तो यहाँ पे देखो 0.225 न्यूटन पॉजिटिव है. ठीक है, तो पॉजिटिव है बोले तो ये जो m1 जिस डायरेक्शन में निकाले आप लेफ़्ट टू राइट, तो अभी जो फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम भी है ना आपको लेफ़्ट टू राइट ही निकालना है. और वो जो लाइन बनेगा 5.2 सेंटीमीटर बनाना है. यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ.
ये होगा 5.2 सेंटीमीटर का लाइन। ओके, ये 0 है, ये डायरेक्शन में ये ए है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू फोर्स, नेक्स्ट वैल्यू का देखो, ये जो है 0.225। नेक्स्ट वैल्यू जो है ये अननोन वैल्यू, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट वैल्यू जो है 0.2 है। ओके, नेक्स्ट वैल्यू जो है 0.2 है, ये m3 का है। ठीक है, 0.2 को आपको पहले स्केल में कन्वर्ट करो। यहाँ पे डायरेक्टली स्केल 0.2 का ही है, तो 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ले। यहाँ पे देखो m3 का जो फोर्स का वैल्यू 0.2 है, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर लाइन निकालना है। और वो जो 5 सेंटीमीटर का लाइन जो है m3 का पैरेलल, इसका पैरेलल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, m3 जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 डिग्री बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है m3 के राइट साइड में है। तो इसलिए मैं यहाँ पे राइट ये पॉइंट से निकालना है आपको लाइन, तो ये पॉइंट से मैं एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ रेफरेंस के लिए। ठीक है, ये इस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस बना के आपको 90 डिग्री मेज़र करके m3 के मास, m3 का पैरेलल निकालना है, m3 का पैरेलल निकालना है। तो ये 90 डिग्री होगा और ये लाइन जो है ये से निकलेगा। ठीक है, और वो 5 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि यहाँ टैबुलर कॉलम में देखो 0.2 न्यूटन वैल्यू है, वो m3 का है। ठीक है, और यहाँ पे स्केल हम 0.2 न्यूटन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लें, तो इसलिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लाइन निकालता हूँ। यहाँ तक ही बनेगा। ये पॉइंट जो है बी करके लो, सो डायरेक्शन ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स की वैल्यू देखो, नेक्स्ट फोर्स की वैल्यू जो है 0.14 करके है, 0.14 करके है। तो इसको पहले स्केल में कन्वर्ट करो। .14 न्यूटन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आरो मार्क्स ऐसे डालो, क्वेश्चन मार्क के साथ जो कनेक्टेड है उसके डिनोमिनेटर में लिखो, ये नंबर जो है ऊपर लिखो, 0.14 इंटू 5 सेंटीमीटर। सो 0.14 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 0.2, सो यू विल गेट 3.5 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से 3.5 सेंटीमीटर निकालना है। मगर यहाँ पे देखो ये m4, ये जो 0.14 जो है ना, ये m4 मास का वैल्यू है। 0.14 जो वैल्यू है ना, ये m4 का मास का है। तो m4 ये जो 0.14 न्यूटन आप स्केल में कन्वर्ट करने के बाद 3.5 सेंटीमीटर हुआ। तो ये लाइन जो है m4 के पैरेलल बनाना है, m4 का पैरेलल बनाना है। 3.5 सेंटीमीटर जो है m4 का पैरेलल बनाना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करता हूँ आपको, यहाँ पे देखो m4 का एंगल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ m4 का एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज में 313 डिग्रीज है। तो यहाँ पे भी, इस पॉइंट पे भी एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो। उस हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज में आप 313 डिग्रीज को एंगल मेजर करके पैरेलल लाइन निकालो। तो यहाँ पे मैं परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ पहले बी पॉइंट से, ये रेफरेंस लाइन है। तो ये पॉइंट से मैं 330 डिग्रीज मेजर करता हूँ। डिग्रीज बोले तो 180 प्लस 133 यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो आपको इस ये पॉइंट पे आपको 3.5 सेंटीमीटर लाइन निकालना है। बराबर है, तो 3.5 सेंटीमीटर लाइन निकालो। तो ये हो गया सी पॉइंट। ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आप मिटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा 313 डिग्रीज। ओके, रेफरेंस के लिए आप नई एंगल बनाएंगे भी तो चलेगा। ये लाइन जो है 0.2 का है, ये लाइन जो है 0.14 का है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट नॉन वैल्यूज़ कौन से हैं फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम में। यहाँ पे कुछ और नॉन वैल्यूज़ नहीं है, ये जो वैल्यू है अननोन वैल्यू है, इसको छोड़ दो।
इसका भी फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकाले, इसका भी निकाले, इसका भी निकाले। अब बचा कौन सा, ये। तो इसका अननोन वैल्यू इसको हम छोड़ देंगे, अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे डायग्राम खत्म हुआ। अभी क्या करना है, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये एंड पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये हो गया फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम। तो यहाँ पे देखो, ये लाइन जो OC इस डायरेक्शन में बना है, ये OC लाइन जो है, यहाँ पे फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम में कौन सा वैल्यू अननोन है, ए वैल्यू अननोन है। फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम में ए वैल्यू अननोन है, तो ये जो लाइन है OC वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा 0.038 m2। ये वैल्यू को ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी क्या करना है, m2 को कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल, यहाँ पे पहले आप OC लाइन का मेज़र करो। यहाँ पे OC का डिस्टेंस मेज़र करेंगे पहले। यहाँ पे देखो OC का डिस्टेंस जो है, यहाँ पे देखो 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर। ओके, अभी जो देखो m2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये लाइन जो है OC जो है इस वैल्यू को इक्वल रहेगा, तो 0.038 m2 इज इक्वल टू OC इंटू स्केल। स्केल को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू को वापस लाना पड़ेगा। ठीक है, 0.038 m2 एज इट इज़। OC का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। स्केल, यहाँ पे देखो स्केल, यहाँ पे देखो स्केल 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो आपको स्केल वापस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए 5 को इधर लेना है, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 5 करना है। ठीक है, तो वही यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ये 5 को राइट साइड में ले तो ऐसे होगा, तो वही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करो, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे देखो 8 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 5, सो 0.32, सो 0.038 m2 इज इक्वल टू 0.32 होगा। सो m2 इज इक्वल टू 0.32 डिवाइड बाय 0.038, सो m2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.038 8.42 अप्रॉक्सीमेटली 8.24 kg, 8.42 kg। सो ये होगा m2 का वैल्यू। अब एंगुलर पोजीशन ऑफ m2, m2 का एंगल बिटवीन 192। तो यहाँ पे देखो, ये जो OC लाइन जो है हम इस डायरेक्शन में निकालें। OC लाइन जो है ऐसे, मतलब एंड से स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखो इस लाइन का एंगल फाइंड करना है, तो इसलिए आपको पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है। C पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है रेफरेंस के लिए। सो ये लाइन से एंटी क्लॉकवाइज में ये लाइन का एंगल मेज़र करना है, तो वही एंगल रहेगा m2 का। सो यहाँ पे देखो 180 यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट 180 हुआ, ये लाइन जो है नेक्स्ट 18 पे है। 180 प्लस 18 198 एंगल 180 प्लस 18, सो 198 डिग्रीज होगा। तो यहाँ पे देखो 198 डिग्रीज। सो ये होगा m2 का एंगल, और बुक का वैल्यू है 196.5, सो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ करेक्ट। और m2 का वैल्यू बुक में जो है 8.74 है, तो इतना आएगा भी तो चलेगा, इट इज़ एक्सेप्टेबल। सो अभी क्या करना है, इस m2 को स्पेस डायग्राम में निकालना है। यहाँ पे देखो स्पेस डायग्राम है। ओके, m1 से हम रेफरेंस मास करके लिए हैं। ठीक है, तो उस मास से 198 डिग्रीज आप मेज़र करो। 180 यहाँ ऑलरेडी मार्क किया है, फिर भी और एक बार मेज़र करता हूँ। 180, नेक्स्ट 180 प्लस 18, 180 प्लस 18, तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मास निकाल दो। ये होगा m2, सो ये होगा
M2। तो ये होगा एंगल 198 डिग्रीज। ओके, ये होगा प्रॉब्लम ख़त्म यहाँ पे। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू प्लीज़ contact me or message me, or even you can clarify the doubts in the interaction class. Thank you.